So in today's session, what we are going to discuss forward rate agreement, and three things which we are going to discuss. The first thing is pricing of forward rate, and then value of FRA, and here we'll be discussing at maturity and before maturity. So first, let's cover this part of FRA. Before discussing FRA, there is a term which is called euro dollar deposit. And what is the meaning of euro dollar deposit? It simply says that any deposit which is happening in large bank outside US. So the deposits which are happening in large banks outside United States, and all these deposits are denominated in US dollar. Any deposit which is happening outside US, but all those deposits are denominated in US dollar, those are called euro dollar deposits. On euro dollar deposits, whatever is the lending rate on these euro dollar deposits, whatever is the lending rate, right? And obviously these lending rates is between banks. So one bank is lending to another bank, and all those lending is happening, and it is denominated in US dollar, but it is happening outside US. So whatever the lending rate between banks on these dollar denominated rates, dollar denominated deposits, is what we call LIBOR, London Interbank Offer Rate. One thing which is very important for you to understand here is that it is always an annualized rate. All these are annualized rates, right? And the convention here is we use 360 days in a year. This is a convention. LIBOR is an add-on rate. There are two things. One is called discount basis. The other one is add-on rate. So what happens in a treasury bill? Treasury bill, you say that it is issued at a discount of 5%, right? Whereas LIBOR is an add-on rate. So if I am saying that the face value is 100 and your interest rate is 5%, this 5% will be added to this face value, and total 105 will be paid at the time of maturity. So remember, LIBOR is an add-on rate, it is not a discount. The most important significance of LIBOR rate is that it is used as a reference rate. It is always used as a reference rate for all US dollar denominated loans. So all those loans which are denominated in US dollars worldwide, for that we use LIBOR as the reference rate, right? The most important point here is I have already told you that convention is that in LIBOR we use 30 by 360 convention. So number of days in a month is 30, and number of days in a year is 360, right? Similarly, we have something called Euribor also. There is something called Euribor also. So what happened? This is an equivalent euro lending rate. This was a dollar lending rate, and for euro lending rate we have something called Euribor, right? Now, what is forward rate agreement? So let us understand what is forward rate agreement, and then we'll discuss pricing of forward rate agreement. If I am saying 2 by 5 long 2 by 5 FRA at the rate of 6%. What exactly it means? It means this person is entering into a contract to borrow after 2 months for a period of 3 months at what rate of interest? At the rate of 6%. So the most important point here is to understand a person who is long in FRA, actually he is entering into a contract to borrow. If I say a person is short 2 by 5 FRA at the rate of 6%,
What exactly it means? This person is entering into a contract to lend after 2 months for a period of 3 months at 6% annual rate. So the person who is short in FRA is actually a lender. The person who is long in FRA is actually a borrower. Now, this forward rate agreement, I said long 2 by 5 FRA at the rate of 6%. What does it mean? That this person has entered into a contract to borrow after 2 months. And for how much period? He is ready to borrow for 3 months. At what annual rate of interest? 6%. This is decided here only. So when we are doing pricing of FRA, basically we mean what? We are trying to calculate forward rate. So the moment somebody says pricing of FRA, it is simply forward rate, right? Now the person who's long in FRA at the rate of 6%, what happens if at the end of 2 months interest rate goes up to 6%? This person will have a benefit because इसने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बोरो करने का 6% पे. तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ भी जाता है तो उसको कोई नुकसान नहीं है, रादर उसको फायदा ही है, बिकॉज अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता तो उसको बोरो करना पड़ता 7% पे. So the moment interest rate goes up, this is beneficial for the person who is long in FRA. If interest rate goes down, this will be beneficial for the person who is short in FRA. Let's say this person has entered into a contract to lend after 2 months at the rate of 6%. If interest rate goes down to 5%, still this person can lend to long at what rate? 6%. अगर contract नहीं किया होता तो कितना मिलता है इसको? Only 5%. So what is the anticipation of the person who has entered long FRA? He is anticipating interest rate to go up. What is the anticipation of a person who has gone short? He is anticipating that interest rate will go down. Now this is basics of FRA. In this context, I'll just move on with the discussion. So I said long 2 by 5 FRA, long 2 by 5 FRA at the rate of 6%. This contract is for a period of 2 months. Remember, this contract is for a period of 2 months. So 2 months here will be called the maturity of the contract. When the settlement is going to happen, the maturity is after 2 months, right? And this person will be borrowing for how many months? For a period of 3 months, right? So if I am taking 2 by 5 FRA, so what I'm saying, this contract will expire in 2 months, and the underlying loan will be settled in how many months? Will be settled in 5 months. कहने का मतलब ये जो अभी आपने कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट किया, इस कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी अगले 2 महीने में है, लेकिन जो उसका अंडरलाइंग लोन है, तो इफ यू आर स्टैंडिंग हियर, दिस विल बी सेटल्ड एट द एंड ऑफ 5th month. So terminology is very, very important here. Any problem with the terminology, any problem with the understanding part, you can ask the question, otherwise I'll move on. बोले भंडारी साहब ये तो क्लियर है? Yes, sir. Okay. Pricing and valuation में क्या difference है? The moment I am talking about price, basically we are trying to calculate forward rate, and the moment I am talking about value of FRA, so here I am talking about gains and losses. Gains and losses. So there are three things here which we are going to discuss. The first one is, this is 0, this is 2, and this is 5. First thing which we are going to find out is price of FRA. So basically we'll try and figure out what is the forward rate. Now there are two things. As far as valuation is concerned, valuation can be at 3 stages. Inception, this was before maturity, and this is at maturity. We are going to focus on valuations before maturity and at maturity, because at the inception
value of forward rate agreement will be 0 for both long and short, right? Because here we have entered into a contract 6% and currently also the interest rate 6%. So there's no gain and loss to the long or short. So we are going to focus on valuations before maturity and at the time of maturity, right? Convention we have already seen. Which convention are we going to use? We are going to use 30 by 360 convention. So we are going to use 30 by 360. If in the question it is given that LIBOR on 30-day loan is 6%. Remember, this is always an annualized rate. So अगर 360 दिन का for 360 days, if the rate is 60%, so for 30 days, what will be the interest rate? It is very, very simple. How you are going to calculate? 6 divided by 360 into 30. And this will be nothing but 0.5%. Right? So unannualized करने का तरीका आपको पता चला. Annualized number is 6%. Unannualized number for 30 days 0.5%. Right? Okay. So in this context, let's do a question और एक question आपको भी दूंगा मैं करने के लिए. So we are doing pricing of FRA. This is the first part of the question. And then we'll be doing valuations before maturity and valuations at the time of maturity. There is a 1/4 FRA, right? And we need to find out the price of this 1/4 FRA. Current 30-day LIBOR is given to you. So current 30-day LIBOR is 4%. Then you have 120-day LIBOR is 5%. All these are annualized numbers. So first what we need to do, we need to find out unannualized numbers for 30-day and 120-day. Now if you see in the question, they have given you 30-day rate and 120-day rate. This is 1/4 FRA, which means what? This contract says that this person, whether he is long or short, is going to borrow or lend after 1 month for a period of 3 months. And see here, they have used 120-day rate, which means they are talking about this period. 30-day rate, which means what? They are talking about this period. Using this and this, we can clearly figure out what is the rate here, right? We have discussed all these things in level 1 also, how we have used spot rate and forward rate, right? Using spot rate, you can find out what? You can find out forward rate. If you remember, ऐसे ही करते थे ना अपन कि ये spot rate आपको दिया हुआ है, ये spot rate आपको दिया हुआ, इन दोनों को यूज करके आप ये निकाल सकते हो. So if you remember in level 1, what we did कि अगर आपको पता हो, let's say this is 1, this is 2, and this is 0 and this is 2. If this is S2 and if this is S1, तो हम ये निकाल लेते थे ना 1/1y. Similar concept we are going to apply here, right? This 1/1y is what? This is your forward rate. तो अगर मुझे निकालना होता तो मैं कैसे करता था? 1 plus S2 का whole square is equal to 1 plus S1 into 1 plus 1/1y. And then we can easily find out this 1/1y. Similar kind of a concept we are going to use here also, right? Okay, so the question is, you have been given 30-day LIBOR, which is 4%, and 120-day LIBOR, which is 5%. And here you have 1/4 FRA. What we are going to do? First, we are going to unannualize this number. Let's say this R30. This is an unannualized number. How you are going to calculate? अगर 360 days का 4% है तो 30 day का कितना होगा? आप आराम से निकाल सकते हो. 4% multiplied by 30 by 360. This rate is coming how much? Point this much percent. And then you can calculate R120. This is unannualized rate for 120 days. How much it is? Then 5% multiplied by 120 by 360. This is equal to 1.667%. So you know unanalyzed numbers for 30 days, you know unanalyzed number for 120 days. Using all these unanalyzed numbers, now we can find out price of 1/4 FRA.
So what we'll simply do, this 1 plus R 120, this is unannualized number for 120 days divided by unannualized number for 30 days minus 1. You know the numbers, you know the values, and then this will give you a figure of 1.33%. Now this 1.33% is your rate for which period? So if you see the diagram, if this is my 0, this is 1, and this is 4. So this 1.33% is your unannualized forward rate for 3 months, because this is a 3-month forward contract, right? Because this person is going to borrow or lend after 1 month for a period of how many months? 3 months. So this 1.33% is your quarterly number, because this is a 90-day loan. So if you need to annualize, so if you annualize it, then what will be your annualized FRA? This will be 1.33% multiplied by 4. So what is my price of FRA coming? 5.32%, right? Any difficulty till here? You can ask Aba, Bolo. Because this we are calculating price of FRA, right? Yes. Sir, Price of FRA means forward rate. हाँ, right. So value of FRA that will be different. वो Yeah, अलग that अभी will be आगे आएगा different. ना? अभी उस पे आया नहीं, हम सिर्फ प्राइस निकाल रहे हैं FRA का. सर इसमें ना actual settlement will happen at this end of 4th year, right sir? Yes, 4th month. At the end of 4th month, right sir? हाँ. तो actual settlement जो loan का settlement हो, that will happen at the end of 4th month. हाँ जी. And sir, at the end of first month, they will just only enter into the contract at the rate which was decided at 0 month. Yes, यहाँ पे अगर डिसाइड हो गया कि 5.32% हमारा फॉरवर्ड रेट है, तो अगर कोई लॉन्ग है तो आफ्टर 1 मंथ ही कैन टेक अ लोन एट द रेट ऑफ 5.32%. और अगर दोनों पार्टी बोलते हैं कि हम लोन नहीं लेंगे, अगर उस समय इंटरेस्ट रेट है 6%, इस दोनों का जो डिफरेंस है वो पे आउट हो जाएगा. अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि आपसे मैं बोरो करूंगा 5.32% पे, और 1 महीने के बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ के हो गया 6%, आप बोलते हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको लोन नहीं दे सकता, राइट? तो मैं क्या बोलूंगा, भाई अगर लोन नहीं दोगे तो मुझे 6% पे इंटरेस्ट रेट पे लेना पड़ेगा, वो डिफरेंस तुम पे कर दो, राइट? दिस इज व्हाट वी आर कॉलिंग सेटलमेंट एट मेच्योरिटी. ये जो मेच्योरिटी पे सेटलमेंट हो रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट का सेटलमेंट हो रहा है. अंडरलाइंग लोन का सेटलमेंट 4th मंथ के एंड पे ही होगा. ठीक है आशीष जी? हाँ जी सर. सर मैं बस एक चीज पूछ रहा सर, ये प्रैक्टिकल टर्म्स में तो सर एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ ओनली वो लोग डिस्काउंट कर करके दे वुड हाँ, वो हैव कर रीपेड लेते हैं. एंड. हाँ जी, बिल्कुल कर लेते हैं सर. वो तो ऐसे होगा ना कि भाई देखो, हम बोलेंगे कि हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, मैंने तो उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया था 5.32% पे बोरो करने का, इंटरेस्ट रेट बढ़ के हो गया 6%. तुम तो बोलोगे वो मेरे पास जो कैश नहीं है, मैं लोन नहीं दे सकता. मैं बोलूंगा इन दोनों का जो डिफरेंस है, बिकॉज इफ आई एम टेकिंग लोन एट द 6%, so how much is my loss on an annual basis? I am suffering a loss of 0.68%. यस सर. तो तुम बोलोगे भाई आप लोन लेते तो इस पीरियड में आप ये लोन का फैसिलिटी अवेल करते. तो फिर आप अगर नहीं आप वापस बोलते हो कि भाई मेरे को 5.6% 8% का इंटरेस्ट सेविंग होता है, तो वो यहाँ पे होता है ना बच्चे. हाँ तो वो सर फिर डिस्काउंट उसका हम करके. डिस्काउंट करके यहाँ पे ले आके और फिर उसका वैल्यू निकाल सकते थे. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट सेक्शन. ठीक है ओके ना? सर. या ये जो 5.32% है, इसको अपन बोलते हैं नो आर्बिट्राज फॉरवर्ड रेट. दिस इज नोन एज नो आर्बिट्राज फॉरवर्ड रेट. ठीक है, बोलो आबा, समझ में आया? यस सर, ये वाला आ गया समझ में. ओके, भंडारी साहब आगे बढ़ जाए. यस सर. चलिए फटाफट एक क्वेश्चन का आंसर मेरे को आप करके बता दीजिए, साथ में प्रैक्टिस भी हो जाएगा आपका. नाउ विल बी डिस्कसिंग वैल्यूइंग एन एफआरए एट मैच्योरिटी. मेच्योरिटी के टाइम में एफआरए का क्या वैल्यू होगा? मेच्योरिटी कहने का मतलब, अगर मैंने बोला 2/5 एफआरए है, यानी कहने का मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, यहाँ पे क्या होगा वैल्यू एफआरए का, राइट? इसको एक बड़े सिंपल से क्वेश्चन से समझ सकते हैं अपन. और क्वेश्चन क्या बोलता है, जो हमारा पिछला ही क्वेश्चन था
1/4 FRA था हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। 1/4 FRA में आपको उसने क्या बोला था, उसने बोला था कि भाई आपका 30 डे लाइबॉर इज 4% और आपको निकालने के लिए अभी ये 4 वाला चाहिए। 30 डे का तो यहाँ मिल गया और 120 डे लाइबॉर चाहिए। आपको क्वेश्चन से ही पता है कि व्हाट डेटा यू नीड। 120 डे लाइबॉर आपको दिया हुआ था 5% और आपने प्राइस ऑफ FRA निकाल लिया। प्राइस ऑफ FRA आपने लास्ट क्वेश्चन में जो निकाला, हाउ मच इट वाज कमिंग, इट वाज कमिंग 5.32%। ये जो 5.32% है 1/4 FRA का, वो हमने क्या बोला कि साहब दिस इज FRA, ये रेट अभी डिसाइड हो गया कि आज से 1 महीने बाद लॉन्ग बोरो करेगा किस रेट पे, 5.3% एनुअल रेट पे फॉर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। ये रेट अभी डिसाइड हो गया, इसी को हम बोल रहे हैं नो आर्बिट्राज फॉरवर्ड रेट। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज कि सब चीज वही सेम है, 1/4 FRA है। नोशनल प्रिंसिपल इसने दे दिया 1 मिलियन। 1 मिलियन इज द नोशनल प्रिंसिपल, राइट। बोलता है सपोज दैट एट द कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरेशन, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ये जो 90 डे रेट है, ये जो 5.32% है, दिस इज ऑल्सो 90 डे रेट, एनुअल टर्म्स में है। 1 महीने के बाद 90 डे रेट बढ़ के हो गया बच्चे 6%, राइट। अब हमें निकालना है कि यहाँ पे इस FRA का क्या वैल्यू होगा लॉन्ग के लिए, क्या वैल्यू होगा शॉर्ट के लिए। एंड दिस व्हाट दे आर सेइंग कि दिस सेटलमेंट इज हैपनिंग इन कैश, राइट। अब देखो लॉन्ग के लिए तो फायदा ही है बच्चे, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था 5.32% पे, 1 महीने बाद रेट बढ़ के हो गया 6%, उसके लिए तो गेन है। कितने का गेन है वो कैसे निकाले, सी हेयर, यहाँ पे रेट हो गया 6%। लॉन्ग को कितने का फायदा हुआ बच्चे, अगर मैं पूछूं लॉन्ग को फायदा कितने का हुआ तो आप बोलोगे एनुअल बेसिस पे 0.68% का। कॉन्ट्रैक्ट किया 5.32 पे, रेट बढ़ के हो गया 6%, यानी लॉन्ग को एनुअल बेसिस पे कितने का फायदा हुआ, 0.68% का। लेकिन ये एनुअल टर्म्स में है, जबकि हमारा लोन तो फिर क्वार्टरली है, 90 डे वाला है, तो 90 डे के बेसिस पे कितना फायदा हो जाएगा इसको, 0.17%। भाई पूरा लोन अगर वो 90 डे का लेता है ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 5.32% पे, दिस इज एन एनुअल रेट। 90 डे का एनुअल रेट बढ़ के हो गया 6%, यानी टोटल फायदा उसको होता है 0.68% का, बट दिस इज फॉर 1 ईयर। सो फॉर 90 डे हाउ मच इज द बेनिफिट, 0.17%। अब ये 0.17% का जो बोलते हैं आप बेनिफिट हुआ, नोशनल प्रिंसिपल है 1 मिलियन, सो व्हाट यूल से कि लॉन्ग को कितने का फायदा होगा, 1 मिलियन multiplied by 0.17%. If you do this calculation, this is coming 1700. मैंने आशीष से कॉन्ट्रैक्ट किया कि आशीष मैं तुमसे 1 महीने बाद बोरो करूंगा 5.32% पे, 1 महीने बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ के हो गया 6%। आशीष ने बोला कि मैं आपको सर लोन नहीं दे सकता। मैं बोलूँगा आशीष तो फिर तुम्हें जो डिफरेंस है उसका कॉम्पनसेशन मुझे देना पड़ेगा, बिकॉज आज की डेट में अगर मैं लोन लूँ 3 महीने के लिए तो मुझे 6% देना पड़ेगा। आशीष बोलेगा कोई बात नहीं सर, मैं आपको डिफरेंस पे कर देता हूँ, आप कहीं और से लोन ले लो। लेकिन आशीष बोलेगा कि सर ये जो डिफरेंस है, यानी आपको एक्स्ट्रा 1700 पे करना पड़ेगा, वो मैं आपको कॉम्पनसेट कर दूंगा। लेकिन ये एक इंटरेस्ट सेविंग 0.1700 का जो इंटरेस्ट सेविंग आपको होता अगर मैंने आपको लोन दिया होता, तो ये तो इंटरेस्ट सेविंग तब होता ना जब आप लोन का टर्म कंप्लीट करते। यानी दिस इज माय इंटरेस्ट सेविंग व्हेन आई एम कंप्लीटिंग द लोन टर्म, यानी 1700 का इंटरेस्ट सेविंग मेरे को तब होता ना जब मैं लोन का टर्म कंप्लीट करता। आशीष क्या बोलेगा सर, इस 1700 का प्रेजेंट वैल्यू मैं आपको दे देता हूँ। तो 1700 का प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालूं, यहाँ पे मेरे को क्या करना है भाई, पूरे साल का रेट, अभी 90 डे का रेट कितना चल रहा है, करेंटली 90 डे रेट is 6%, बट दिस इज एनुअल नंबर, ठीक है ना, दिस इज एन एनुअल नंबर। अनएनुअलाइज करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1.5%, यानी 1700 को आई डिस्काउंट बाई 1.5%। तो कैसे करूंगा, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, 1700 डिवाइडेड बाई 1.015। If I do this calculation, my answer is coming 1674.88. This is the value of FRA at maturity, and this is positive for long and this is negative for short. Tell me,
Is there any problem in understanding or is it clear? But next part of the question is valuing an FRA before maturity. बिफोर मेच्योरिटी करना है, कैसे करें? सेम क्वेश्चन है आशीष जी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 1/4 FRA है, हमने निकाल दिया था कि फॉरवर्ड रेट कितना आ रहा था 5.32%, ये हमने पहले निकाला हुआ था। अब हमारे को जो वैल्यूएशन करना है वो करना है यहाँ पे कि आफ्टर 10 डेज, 10 दिन के बाद, एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी नहीं, आफ्टर 10 डेज, है कि नहीं, यानी 10th डे पे अब हमें कैलकुलेशन करना है कि यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि लॉन्ग को फायदा हो रहा है शॉर्ट को। ओके, नाउ व्हाट दे आर सेइंग कि यहाँ पे नोशनल प्रिंसिपल वही है $1 million, बट आफ्टर 10 डेज आफ्टर इनिशिएशन 110 110 डे लाइबोर इज गिवन टू यू द क्वेश्चन। अब एक बात बताओ, यहाँ पे हम फॉरवर्ड रेट निकाल सकते हैं क्या? चेष्टा पावा, अगर 10th डे पे हमें फॉरवर्ड रेट निकालना है तो हमें कौन सा रेट चाहिए? एक तो देखो, दिस इज 4 मंथ मींस 120 डेज, तो अगर 10 और 4 का डिफरेंस देखो तो 110 आ रहा है, और इसका डिफरेंस कितने का होगा? 20 डे का, यानी हमारे को सिर्फ दो रेट चाहिए, एक तो 20 डे लाइबोर चाहिए, एक 110 डे लाइबोर चाहिए। 20 डे लाइबोर क्वेश्चन में दिया हुआ 5.7%, 110 day LIBOR in the question it is given as how much? This is given as 5.9%. मेरे को क्वेश्चन देख के ही पता चल गया कि अगर 10 डेज के बाद पूछ रहा है, अगर मुझे नया, अब वी हैव टू फाइंड आउट न्यू FRA, नया एक फॉरवर्ड रेट निकालना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे फॉरवर्ड रेट ये था, यहाँ पे क्या इंटरेस्ट रेट हमें नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे अब हमें 10th डे पे निकालना पड़ेगा कि फॉरवर्ड रेट क्या चल रहा है। 10th डे पे निकालना है, कहने का मतलब टोटल कितना दिन बचा अभी? 120 डेज अंडरलाइन लोन को सेटल होने में। मेच्योरिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में कितना दिन बचा? 20, यानी ये 110 डे का रेट मेरे को पता हो और ये 20 डे का रेट मेरे को पता हो, तो मैं आराम से ये निकाल सकता हूँ कि भाई 10th डे पे ये 3 मंथ के लोन का फॉरवर्ड रेट क्या होगा, राइट? एंड दैट इज व्हाई इन द क्वेश्चन इटसेल्फ दे हैव गिवन यू दीज टू डेटा। कैन यू टेल मी कि अब हम यहाँ पे कैसे निकाले प्राइस ऑफ FRA? भंडारी जी बताओगे क्या? सर 110 को पहले डी एनालाइज कर देंगे। हाँ, ऐसे डी एनालाइज करेंगे, यानी 1 + 0.059 यस, मल्टीप्लाई बाय 110 by 360 360। यस, और 1 + 0.57 into 1057 yes 20/360। -1, यस सर। ठीक है। और जो वैल्यू आएगा वो भंडारी जी कितने का होगा? वो अंडरलाइंग लोन तो मेरा क्या है, 3 मंथ्स का है, यस सर। तो उसको एनुअलाइज करना होगा तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे? नहीं सर, नहीं, नहीं। ये उसको जो हम सर फॉरवर्ड रेट निकाल रहे हैं दिस इज फॉर 3 मंथ्स। ये ये सर फॉर 3 मंथ्स। ये जो आपने 120 डे 20 डे को किया, अनएनुलाइज किया है ना सर? हाँ जी। तो जब अनएनुलाइज करोगे तो उसके बाद जो वैल्यू मिलेगा वो भी तो अनएनुलाइज मिलेगा, यस सर, उसको एनालाइज करना पड़ेगा। यस सर। यानी अंडरलाइंग जो फॉरवर्ड रेट आप निकाल रहे हो वो 3 मंथ्स का निकाल रहे हैं, अनएनुलाइज नंबर, तो एनुलाइज करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। यस सर। ये 4 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, मेरा आंसर आ रहा 5.92568%। हम इसको एनुलाइज इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमें इससे कंपेयर करना है, ये एनुलाइज नंबर है, यहाँ पे भी तो हमें एनुलाइज नंबर ही चाहिए होगा ना, तभी तो कंपेयर कर सकते हैं ना। ठीक है, यस सर। ओके, बोलिए, इसको नहीं समझ में आया आप बोलो बच्चे। Okay, sir, we are listening. ओके, अब इस क्वेश्चन में बड़ा सिंपल सा चीज आपको दिया हुआ है कि भाई 0, दिस इज 1 मंथ, दिस इज 4 मंथ्स एंड दिस इज आफ्टर 10 डेज। यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट फॉरवर्ड रेट चल रहा था 5.32%। अभी देखिए, अभी हमने निकाला है कि यहाँ पे फॉरवर्ड रेट क्या हो गया, 5.92568%।
अब आशीष बोलो, लॉन्ग को फायदा होगा या नुकसान होगा? आशीष, सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देंगे, कॉल आ गया था बीच में, सॉरी। क्वेश्चन ये था वैल्यू ऑफ एफआरए बिफोर मैच्योरिटी, ठीक है? तो हमने 10th डे पे नया फॉरवर्ड रेट निकाल लिया एंड नया फॉरवर्ड रेट ये आ गया। जो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट का फॉरवर्ड रेट था ये, तो लॉन्ग को फायदा होगा या शॉर्ट को फायदा होगा? सर लॉन्ग को फायदा होगा सर, लॉन्ग को क्योंकि फायदा रेट होगा हैज कितने परसेंट का? सर सर ये 5.925 माइनस 5.32, तो सर ये हो लेकिन जाएगा ये सर आपको एनुअल नंबर है, 6.6। और हाँ ये सर, ये हमारा एनुअल नंबर है। ये हमारा एनुअल नंबर है, राइट? हाँ सर। तो इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा ना, बिकॉज हमारा अंडरलाइंग लोन तो 3 मंथ्स का है ना। हाँ सर। तो सेविंग इतने का होगा ना हमारे को सर, डिवाइड बाय 4 कर देंगे, और अमाउंट में निकालना है तो $1 million से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है? ये अगर हम करते हैं तो दिस इज कमिंग 1540.20, यानी इतने का फायदा होगा। लेकिन फिर यही कंडीशन है कि ये 1440 का फायदा होगा आपको यहाँ पे 120th डे पे। तो अगर इसका मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना है ऑन डे 10, तो मैं कैसे निकालूंगा पवन भंडारी साहब? सर इसको सर जो नया रेट है सर उससे से उस डिवाइड कर दो, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे उसकी। कैसे निकालेंगे? 1 प्लस नया रेट हमारा पॉइंट 0.059 ले लिया 059, यस सर, इंटू 110/360, 360। 1487 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। यही तो पूरा प्रोसेस है भंडारी साहब, नहीं? यस सर। सर लास्ट वाला स्टेप क्या क्या आपने? लास्ट स्टेप तक कुछ नहीं किया। ये समझ में आया कि 1514.20 कहां से आया? यस सर। अब इतने का गेन होता अगर आप लोन का टर्म कंप्लीट करते, यानी ओके। 120th डे पे आपको इतने का फायदा होता। हम फायदा निकालना चाह रहे हैं 10th डे पे, यानी इस अमाउंट को हमें अच्छा, डिस्काउंट इसका करना पड़ेगा फॉर प्रेजेंट वैल्यू। 110 डेज, ओके। राइट? और रेट क्या चल रहा है अभी? 5.9268 है ना? तो इसको अनएनुअलाइज कर दिया 5.9% को 110 डे के लिए, और इसे डिस्काउंटिंग कर दिया, ठीक है? अगर नहीं समझ में आ रहा, जैसे 360 डेज के लिए अगर रेट है 5.9%, तो 110 डे के लिए क्या रेट होगा, 110। वही चीज है, और इसको डिस्काउंट कर दो। हम्म। नहीं? इज इट क्लियर यस नाउ? सर। राइट? हम्म। ओके, फटाफट एक क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज this person has entered into a 3/6 FRA at the rate of 3% 30 days ago. आज से 30 दिन पहले इसने कॉन्ट्रैक्ट किया था 3/6 FRA एट द रेट ऑफ 3%। नोशनल प्रिंसिपल ये है 10 मिलियन। आज की डेट में बोलता है कि लाइबोर 30 डे लाइबोर का ये रेट है, 60 डे लाइबोर का ये रेट है, 90 डे लाइबोर का ये रेट है, 120 डे लाइबोर का ये रेट है, 150 डे लाइबोर का ये रेट है। एंड द क्वेश्चन सेज कि आज की डेट में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉन्ग पोजीशन इन एफआर। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट 30 दिन पहले हुआ था, तो आज की डेट में ये कॉन्ट्रैक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 2/5 एफआरए में कन्वर्ट हो जाएगा। वाई? ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ था बच्चे 036, ठीक है? यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था एट द रेट ऑफ 3%। ऑब्वियसली अंडरलाइंग लोन इज फॉर 3 मंथ्स ओनली। 30 डेज अगो, यानी हम यहाँ पे खड़े, वी आर स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द प्राइस ऑफ एफआरए हियर आज की डेट में। अब ये एफआरए कितना हो गया बच्चे? ये एफआरए 2/5 में कन्वर्ट हो गया 2 महीने कॉन्ट्रैक्ट की मेच्योरिटी पे, और अंडरलाइन सेटल होने में 5 मंथ्स। सो अब हम जो सर निकालेंगे, हाँ जी, सर मेरा यही पे इशू है आई गेस। आपने बोला 30 डेज अगो, सो हम हाँ मंथ पे हैं, तो वहां से 30 डेज तो सेकंड मंथ में जाएंगे ना हम। मैडम, 30 डेज अगो कहने का मतलब आज से यहाँ से 30 दिन पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। नहीं समझ में आया? नहीं। मैंने बोला कि बोलता है वैल्यू ऑफ लॉन्ग पोजीशन इन एफआरए। क्वेश्चन में बोला कि 30 डेज अगो दिस कॉन्ट्रैक्ट वाज इनिशिएटेड। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? 3/6 एफआरए। तो 30 डेज अगो कहने का मतलब कि आज टुडे वी आर स्टैंडिंग वेयर एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ।
30 days ago this contract was initiated at a price of 3%. यही तो बोला क्वेश्चन में, अब समझ में आया? यस सर, आई गेस यहीं पे गलती हो गई मुझसे। ठीक। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे निकालना प्राइस ऑफ FRA। नहीं भंडारी साहब, इसको 2/5 FRA की तरह ट्रीट करो ना। मैं आपको दोनों डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये 0, ये 3, ये 6। ये कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट हुआ एट द रेट ऑफ 3%। अब बोलता है 1 महीने बीत गए, ठीक है? तो आप देखो, अगर 1 महीने बीत गए तो इसको 0 बोल दो। कॉन्ट्रैक्ट के सेटल होने में 2 महीने बचे, तो ये 2/5 FRA हो गया। बोले भंडारी साहब, ठीक है? यस सर, लेकिन अब मैंने 2/5 FRA के लिए क्या चाहिए बच्चे? आपको 150 डे का रेट चाहिए, और ये कितने डे का रेट चाहिए? 60 डे का चाहिए ना भंडारी साहब? जी ये रेट मिल जाएगा। सर मैं यहीं पे मिस्टेक यही कर रही गलत थी। हो मैं गया। 60 डेज, हाँ मैं 60 डेज तो ले रही थी, बट मैं ये 5 नहीं कर पा रही थी। मेरे को ये 180 डेज लग रहा था। मैं नहीं, जा रही थी तो ठीक है ना? 60 और 30, 180 का सोच रही थी मैं। अब 1 प्लस आर 150 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर 60 -1 कर दो। ये फिर अंडरलाइन तो 3 मंथ्स का है, एनुअलाइज करने के लिए फिर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना भंडारी साहब? तो आपका नया फॉरवर्ड रेट आ गया 3.484%। गेन है या लॉस है? ऑब्वियसली गेन है। 3% पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अभी चल रहा है 3.584%। नहीं भंडारी साहब, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, है सर ना? बट ये कंपेयर कैसे होगा? कौन सा? सर 3 और 3.584। ये भी तो एनुअल नंबर है, ये भी तो एनुअल नंबर है। बट सर वो 0 पे है, ये हाँ तो आपका। सर, अगर मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट 3% पे किया था, उसका भाव बढ़ के 3.584% हो गया, तो मेरे लिए तो गेन ही है ना, क्योंकि अंडरलाइन तो सेम ही है ना। अंडरलाइन तो 90 डे का लोन है, वही लोन पे पहले रेट चल रहा था 3%, अब बढ़ के हो गया 3.584%। मेरे लिए तो गेन ही है ना। ओके सर, इसको भी एडजस्ट कर दिया था मैंने। हाँ जी, कुछ नहीं करो फिर। अब आप 3.584% में से माइनस कर दो 3%, लेकिन ये एनुअल नंबर है भंडारी साहब, तो 90/360 करना पड़ेगा ना। अब मल्टीप्लाई कर दो, नोशनल प्रिंसिपल 10 मिलियन है, ठीक है? तो आ गया 14,600। अब ये 14,600 का गेन होगा आपको यहाँ पे, और आपको प्रेजेंट वैल्यू कहाँ पे निकालना भंडारी साहब? 5 मंथ्स बैक। एम आई क्लियर? जी 5 मंथ्स बैक निकालना है तो क्या करेंगे? 14,000 है शायद, 14,600 था, मल्टीप्लाइड बाई व्हाट? 150 डे का रेट देख लो, क्या है 150 डे का रेट? 3.2%। नहीं सर। तो उससे आप डिवाइड कर दो, तो 14,600 डिवाइडेड बाई 1 सर हम प्लस, हाँ को हम प्रेजेंट वैल्यू में निकाल रहे हैं ना, हाँ 14,600 हाँ का, जी, राइट? हाँ जी, हाँ जी। ठीक। 3.2% ये 150 डे वाला इंटू 360, ये आपका आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? मानसी सिंह बोलो, अभी मामला एकदम क्लियर है? यस सर, मैं स्टार्टिंग में गलत कर दी थी तो। हाँ तो इसीलिए तो तुमने ही तो मेरे को बोला था कि सर डेरिवेटिव्स में पता नहीं क्या गड़बड़ हो रहा था, यही सब गड़बड़ हो रहा था, है ना? यही सब गड़बड़ हो रहा है। हाँ, तो अब कहने का मतलब क्वेश्चन मेरे को प्रैक्टिस कराने पे देखिए आपको सब चीज क्लियर हो जा रहा Yes, sir. है। सर मैंने, एक छोटी सी क्वेरी थी। हाँ जी ये जो मैडम। 1 प्लस, ये जो आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाली है, ये आपने एक बार ऊपर वहां जाना, वो जो आपने लाइन बनाई है, ये आपने 0 पे निकाली है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू इस पे निकाली है ना? हाँ ओके, जी, ठीक ये है। जीरो इज इक्विवेलेंट टू जो हमारा टू वो ओरिजिनल वाला 1। कॉन्ट्रैक्ट, हाँ वो वाले वन के इक्विवेलेंट। ठीक है, ओके। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपको और कराते, थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा। देव भंडारी साहब, आपने मन से बना के क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे भी आंसर नहीं पता इसका। ओके, ऐसा क्वेश्चन सर बहुत इफेक्टिव होता है। लॉन्ग 3/6 FRA at the rate of 4%. This contract was initiated 2 months back.
दिस कॉन्ट्रैक्ट वाज इनिशिएटेड 2 months बैक, ठीक है ना, आज से 2 महीने पहले ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। करंटली आपको रेट दिया हुआ 30 डे लाइबॉर दिया हुआ, 60 डे, 90 डे, 120 डे और 150 डे, ये रेट आपको दिया हुआ है। दिस इज 3%, this is 3.25%, this is 3.5%, this is 3.75%, and this is 3.8%। या इसको आप ले लो 4.5%, ठीक है। वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और वैल्यू ऑफ एफआरए टू शॉर्ट निकालना है, बताइए करके। दिस कॉन्ट्रैक्ट वाज इनिशिएटेड 2 months बैक, ट्राई दिस आउट। भंडारी साहब, ओके। My question was long 3/6 FRA at the rate of 4%. This contract happened 2 months back. Okay. 3/6 FRA 036. 3/6 FRA. This contract happened at the rate of 4%. और ये 2 महीने पहले हुआ था. So we are standing here. अब मैं नया FRA का प्राइस निकालना है मेरे को। भंडारी साहब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1/4 से। 1/4 में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ जी। राइट। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट प्राइस ऑफ 1/4 FRA, ठीक है। यानी 1/4 FRA कहने का मतलब हमारे को कौन सा रेट चाहिए भंडारी साहब? 120 डे और 30 डे का। इससे मिल जाएगा हमारे को कि यहाँ पे क्या प्राइस है FRA का। कैसे निकालेंगे भंडारी साहब? 1 + R120 डिवाइडेड बाई 1 + R30 - 1। अंडरलाइन तो मेरा 3 months का है, तो बाहर में मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करो 4 4। से। R120 दिया हुआ है क्या आपको? 3.75 और R30 3% है, नहीं तो 1 + 0.0375। भंडारी साहब 120/360 करेंगे ना? हाँ जी। 1 प्लस ये कितना था? 30 डे का 3% था क्या बच्चे? हाँ 3% दिया था, इंटू 30/360, सॉरी यहाँ -1 मल्टीप्लाई बाई 4, राइट। ये वैल्यू कितना आ रहा है आप मेरे को बता दोगे क्या एक बारी? सर 3.99। कितना आ रहा भंडारी साहब? सर मैं तो 2.743 बना है। अब ये तो कैलकुलेट करके आप बताओ मेरे को कम से कम, बोलो मानसी कितना आया था? हाँ जी। So the question was 1 month ago 3/9 FRA, this contract was initiated at the rate of 6%. This was 1 month back. Notional principal was 1 million. As of today, which means what? After this contract initiation 1 month has passed, and as on date 30 day LIBOR is this much, 60 day LIBOR itna, 90 itna, 120, 150, 180, 240, 270, all these rates are given. All these rates are annualized numbers, right? You have to calculate value of FRA to short, matlab as of today, not 1 month back. So we have 3/9 FRA. See how I'm solving this question. Same approach. 3/9 FRA. So this is 3, which clearly means the underlying is 6-month loan. This is 1 month. 1 month has passed. This contract was initiated at what rate?
at a forward rate of 6%. So the price of forward rate agreement was 6%. Currently we are standing here. So if you're assuming this to be 0, ये आपका फिर कितना रह जाएगा? This is 2, ये तो 9 ही है. Now this 3/9 FRA will get converted into 2/9 FRA. नहीं भंडारी साहब? सर 2/8 नहीं होगा? By 8. तो हम हमने सीरियसली पहले भी तो वाले यही किया था कि अगर हाँ हम 2 मंथ्स अगो कर रहे थे तो हमने मतलब एंड डेट से भी 2 मंथ्स डिडक्ट किए थे. Correct. मतलब 6 मंथ्स का ही लोन है ना? Yes. वो तो Underlying 6 will मंथ्स. remain same. Underlying will remain same. So this is my now 2/8 FRA. Right? Very good. Because underlying तो उतना ही का ही रहेगा. एक महीना निकल गया, यानी अब मेच्योरिटी में अंडरलाइंग के सेटल होने में only 8 months are remaining. कॉन्ट्रैक्ट के सेटल होने में 2 months are remaining. So now this is 2/8 FRA. 2/8 FRA के लिए आपको क्या चाहिए? You need 30 into 8, 240 day rate, और इसके लिए you need 60 day rate. नहीं? So 2/8 FRA का अगर मेरे को प्राइस निकालना तो मैं कैसे निकालूंगा भंडारी साहब? 1 plus R 240 divided by 1 plus R 60 minus 1, and then this time multiplied by 4 or 2, 2. because हमारा टू अंडरलाइन यहीं पे 6 गलती हो months, रही थी. अंडरलाइन हमारा 6 months का है, राइट? अब 240 का रेट देखिए 7%, 60 का रेट 4.5, 7% और 4.5, तो 1 plus 0.07 multiplied by 240 by 360, और नीचे वाला रेट कितना है? 4.5% into 60 multiplied by 360, करेक्ट, minus 1 multiplied by 2. कितना आ रहा भंडारी साहब? यही आपने किया था, कुछ और किया था? नहीं सर, किया तो यही है बट सर आप एक बात बताइए, इस 3 into 9 FRA का मतलब ये होता है आफ्टर 3 months for 6 months. ठीक है? और 2 into 8 का क्या मतलब हुआ फिर? आफ्टर 2 months for 6 months. हाँ जी. ये 2/8 दोनों तरफ से 1 1 घटा दो. हाँ तो एक महीना बीत गया तो दोनों तरफ से एक एक कम होगा ना. ओके सर. मानसी सिंह ये किया था क्या? यस सर. तो क्या रेट? क्या एक्चुअली रेट है? मेरा लॉस आ रहा है इसमें बिकॉज आंसर इज कमिंग आउट टू बी 7.773. हाँ लॉस ही होगा बच्चे, बिकॉज रेट बढ़ गया है, लॉस ही हाँ. होना तो चाहिए. मेरा भी यही आ रहा है 7.78%. तो तो आप मेरे यहाँ को तक आ रहा है 7.7 ये पे. ये कितना आ रहा है ये बता दो मेरे को, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 million से ना. नहीं, ये तो पहले नहीं, रेट निकालो, पहले तो रेट निकालो. 7.78. 7.78. 7.7 7.78. मतलब सर मैंने मतलब 2 डेसिमल्स तक ही लिया है. 7.773. 7.773% हो गया, राइट? यस. अब क्या होगा? इसमें तो गेन आ रहा है. गेन किसको आ रहा है? लॉन्ग को आ रहा है. कितने का गेन होगा? 7.773% माइनस कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 6% पे, नहीं मैडम? और ये रेट एनुअल आप सेमी एनुअल में कर लीजिए, बिकॉज अंडरलाइन 6 मंथ्स का है, मल्टीप्लाइड बाय 1 million कितना आ रहा है? तो 886 890,000. है
$890,000. 890,000 negative. कितना आ रहा है मानसी सिंह बताओ? मेरा तो बहुत ही बड़ा नंबर आ रहा है 886500। वही आना ही चाहिए। तो मेरा भी यही आ रहा है। 886500 यही आना ही चाहिए। ठीक। पक्का यही आ रहा है? सर 8865 आ रहा है बस। ये हाँ सही भाई, आ रहा है। ये 886 परसेंट है, ये परसेंट है। आप क्या कर रहे हो? 1.773% डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाइड बाई 1 मिलियन कर रहे हो। मैडम परसेंट करेंगे तो ये 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो बचेगा क्या? एब्सोल्यूट में 8865 बचेगा ना, राइट? 8865 अब 8865 यहाँ पे सेविंग हो रहा है आपको 8865 का। अब मेरे को डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा कितने दिनों के लिए? फॉर 240 डेज। सो 8865 240 डे का रेट क्या है? 7%। नहीं, 7% से करेंगे या करंट एफआरए वाले प्राइस से करेंगे? बताओ जल्दी। 7% से मल्टीप्लाइड बाय 240 बाय 360, राइट? 7% से करेंगे या इस रेट से करेंगे? 7% से करेंगे बिकॉज वी आर डिस्काउंटिंग फॉर 240 डेज। ये जो रेट आया है दिस इज फॉर 6 मंथ्स, अंडरलाइन 6 मंथ्स वाला, कंफ्यूज मत कर जाना जो भी आपका आंसर सर है। आप 7.78 में से क्यों डिडक्ट कर रहे हो? मतलब कौन सा ये डिडक्ट क्यों कर रहे हैं, ये पूछ रहे हो आप? 7.78 में से आप क्यों आपने डिडक्ट कर रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट किया था 6% पे, उस कॉन्ट्रैक्ट का भी प्राइस चल रहा है 7.773%। यही डिफरेंस तो प्रॉफिट और लॉस देगा ना। सर ऐसे तो पिछले क्वेश्चन में भी हमने कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट किया था 3%। हाँ तो मैडम वो जो नया प्राइस एफआरए का निकाला था उसी में से तो सब्ट्रैक्ट किया था ना। आप देखिए। अच्छा, न्यू प्राइस में से ओल्ड प्राइस हम हाँ कर जी। नहीं बोले चेष्टा मतलब आप ये सिर्फ एक काम कीजिए, जितने फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट के क्वेश्चन दिए हुए हैं, वॉट एवर क्वेश्चन आर गिवन इन क्वेश्चन बैंक, प्लीज मेक श्योर दैट इज सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ठीक है? सर और ये एक अगर बार आप थोड़ा सा प्रेजेंट वैल्यू दिखाएंगे थोड़ा सा? 8475 है प्रेजेंट वैल्यू। मैंने निकाला नहीं है अभी। मतलब आपने किया 1 प्लस 7% से डिवाइड किया है ना? 1 + 7% को अनएनुलाइज किया बिकॉज दिस इज हाँ 240 डे का। ठीक है हाँ, ठीक है। जो भी आंसर आ जाए बच्चे। 8475 आ रहा है ये। हम पूछो, मैंने कैलकुलेट नहीं किया बच्चे। और मुझे तो प्रोसेस है मतलब तो प्रोसेस सही होना चाहिए। अब नंबर कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो। प्लीज ट्राई एंड सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ ए फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। जितने क्वेश्चन बैंक में, लेवल 2 का क्वेश्चन बैंक मैंने आपको भेजा है क्या, नया वाला? यस सर।